Bismillahirrahmanirrahim. This lecture is a continuation of the previous two lectures that we have been discussed, and they were about the disadvantages of the conventional file processing system. In our previous lectures, we have discussed some problems regarding traditional file processing system. Now, in continuation of the previous lecture, we discuss another disadvantage of the file processing system. Another disadvantage of the file processing system is concurrent access. Concurrent access means when many users simultaneously access a piece of data. मीन्स जब आपके पास एक से ज़्यादा यूज़र्स एक ही डेटा आइटम को या रिकॉर्ड को एक ही वक्त में एक्सेस करते हैं, दिस इज़ नॉन एज कंकरेंट एक्सेस. ठीक है, यानी अगर आपके पास सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि देयर इज़ अ सिंगल ग्लास. ठीक है, एंड two persons wanted to drink some water at the same time. ठीक है, and both access the glass of water at the same time. So this is known as concurrent access. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? concurrent access है. Now how this concurrent access creates problems in our filing system, or can we apply some restrictions so that we can avoid those problems which are caused by the concurrent access. Now in traditional file processing system, concurrency को control करना या concurrency constraints को implement करना, it is far much difficult as compared to the database filing system. We haven't discussed yet a database file system, but we are comparing our traditional file approach with the data filing system in order to understand the concept of concurrent access. Okay, for the sake of overall performance of the system and faster response, many systems allow multiple users to update the data simultaneously. ठीक है, यानी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जब मैनी यूज़र्स को या मल्टीपल यूज़र्स को अलाउ किया जाता है कि वो साइमल्टेनियसली मीन्स एट द सेम टाइम एक रिकॉर्ड को अपडेट कर सके या एक्सेस कर सके, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंकरेंट एक्सेस. In such an environment, interaction of concurrent update is possible and may result in inconsistent data. So during this concurrent access, there is a chance of error, and due to that error, your data could be inconsistent. Now, let us suppose how an error occur. कैसे error होता है concurrent access के दौरान. Here is an example. Consider account A with a balance of $10,000. If two bank clerks debit the account balance, say by $500 and $100 respectively of account A at almost exactly the same time, the result of the concurrent execution may have the account balance in an incorrect or inconsistent state. यानी आपके पास एक अकाउंट है ए और उसमें $10,000 का बैलेंस है. ठीक है, और बैंक के दो क्लर्क्स जो है वो एक ही वक्त में डेबिट करते हैं इस अकाउंट बैलेंस को $500 अमाउंट के साथ और $100 अमाउंट के साथ एक ही वक्त में वो एक्सेस करते हैं इस अकाउंट को. तो देयर इज़ अ चांस ऑफ एरर. ठीक है, अगर आपके पास एक डेबिट करता है 500 अमाउंट के साथ, तो जो अकाउंट का बैलेंस है वो डिडक्ट होने के बाद कुछ और बनेगा, जबकि दूसरा जो $100 के साथ डिडक्ट कर रहा है. ठीक है, तो अगर वो $10,000 से हम डिडक्ट करें 100 को, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कुछ और होगा. यानी होना ये चाहिए कि एक वक्त में एक ही यूज़र जो है वो इस
रिकॉर्ड को एक्सेस करें। ठीक है, यानी अगर हम एक क्लर्क को अलाउ करते हैं कि वो इस $10,000 के अमाउंट से 500 जो है वो विड्रा करे, ठीक है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट हो फिर सेकंड वन क्लर्क जो है उस रिमेनिंग अमाउंट से फर्दर $100 जो है वो विड्रा करें। अब अगर दोनों एट द सेम टाइम करेंगे तो देयर इज़ अ चांस कि एक भी 10,000 से 500 को विड्रा करें और दूसरा भी $10,000 से 100 को विड्रा करें। तो एक का तो डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे का डिडक्शन जो है वो रिमेनिंग अमाउंट से नहीं बल्कि $10,000 से होगा। तो हमारे अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट हुआ है 2 दफ़ा, लेकिन ड्यू टू द कंकरेंट एक्सेस जो अपडेशन होगी वो एक यूज़र की होगी। So this is known as the loss update problem. Later on when we will discuss concurrent access of the database या concurrent access of the record in our lectures, then you will understand it that how आपके पास जो प्रॉब्लम है लॉस ऑफ अपडेट का ये कैसे कर होता है। ठीक है, suppose that the program execute one on behalf of each withdraw, read the all balance, reduce that value by the amount of being withdrawn and write the result back. If the two programs run concurrently, they may both read the value of $10,000 and write back $9,500 and $9,900 respectively, depending on which on writes the value lost. The balance of account A may contain either $9,500 or $9,900 rather than the correct value of $9,400. To guard against this possibility, the system must maintain some of a form of supervision. ठीक है, यानी इस तरह के लॉस अपडेट प्रॉब्लम को रोकने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम हो वो इस तरह डिज़ाइंड हो कि वो लॉस ऑफ अपडेट प्रॉब्लम को कैच कर सके या उसको सुपरवाइज कर सके। But supervision is difficult to provide because data may be accessed by many different application programs that have not been coordinated previously. And this type of supervision is not possible when your application programs are designed under the conventional file processing systems rule. So avoid to the problem of loss of updates in concurrent access. It is necessary that we have such systems which can supervise the loss of update problems in our softwares. Otherwise, we will face a lot of errors and a lot of invalid data will be in our सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कंकरेंट एक्सेस एनॉमलीज जो हैं ये आपके पास कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसे प्रॉपरली डील नहीं होती हैं जिस तरह के हमारे पास डेटाबेस फाइल सिस्टम में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ईजीली। आई होप आपको कंकरेंट एक्सेस एनॉमलीज या कंकरेंट एक्सेस ऑफ द रिकॉर्ड की समझ आ गई होगी। ठीक है, लेटर ऑन हम अपने क्लासेस में कंकरेंट एक्सेस ऑफ डेटाबेस को जब पढ़ेंगे तो यू विल केम टू नो व्हाट एक्चुअली इट इज़। ठीक है, नाउ लुक एट हेयर सम प्रैक्टिकल या एग्जांपल के थ्रू जो भी हमने डिस्कस किया कि हेयर इज़ अ जॉइंट अकाउंट। ठीक है, एंड जॉइंट अकाउंट शोज़ अ बैलेंस ऑफ 1,000 टू अ यूज़र ए एंड टू अ यूज़र बी, यानी ए और बी दोनों यूज़र्स के लिए 1,000 का जो है वो शो किया जा रहा है। ठीक है, नाउ ए वांट्स टू विदड्रा 1,000 फ्रॉम द अकाउंट एंड बी वांट्स टू विदड्रा 1,000 फ्रॉम द अकाउंट। ठीक है, अगर आप देख लें तो ए और बी अगर दोनों 1,000 को विड्रा कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी अ चेक कि ए ने अगर विड्रॉ कर लिए हैं तो बी को 1,000 का बैलेंस शो ना हो बल्कि बी को ज़ीरो बैलेंस शो हो।
ठीक है। या अगर बी ने विड्रॉ कर लिए हैं तो ए को 1000 का बैलेंस शो ना हो बल्कि ज़ीरो शो हो, ठीक है। So such type of anomalies can occur in our traditional file processing systems if we want to access the record as a concurrent. Okay, now another problem is security problem. Not every user of the database system should be able to access all the data. हमारी ये कोशिश होती है कि वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स किस जो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस उस हद तक करे जितना उनको रिक्वायर हो, मतलब इररेलेवेंट यूज़र जो हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा एक्सेस ना करें। सो इसके लिए हमने क्या करना है, वी हैव टू इम्प्लीमेंट सम सिक्योरिटी मेजर्स। इसके लिए हमने अपने सॉफ्टवेयर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम उसमें कोई सिक्योरिटी प्रोसीजर्स जो हैं वो ऐड कर सकें, ठीक है। हमने अपने डेटा को अगेंस्ट इररेलेवेंट या अनऑथराइज्ड यूज़र्स के एक्सेस के सिक्योर करना है। Now, this security is possible up to some extent in conventional file processing system. किसी हद तक तो ये कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है, बट up to the maximum extent we cannot secure our application programs interference with each other. For example, in a university, payroll personnel need to see only that part of the database that has financial information. They do not need to access the information about academic records, but since application programs are added to the file processing system in an ad hoc manner, enforcing such security constraint is difficult. अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सिटी। सो जो यूनिवर्सिटी का पेरोल सिस्टम है, वो जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उनको एम्प्लॉइज़ के सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है, ना कि उनके एकेडमिक रिकॉर्ड की, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर जो यूज़र्स हैं जो कि पेरोल बनाने वाले हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो यूज़र्स हैं, जब वो आपके सॉफ्टवेयर को एक्सेस करेंगे तो उसको वो पार्ट एक्सेसिबल हो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, ना कि उसे होल सॉफ्टवेयर का एक्सेस हो। सो जब आपके पास सॉफ्टवेयर अंडर द कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डेवलप होते हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं इस तरह की सिक्योरिटी को कि हम एक पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर को हाइड कर दे दूसरे पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर से या दूसरे यूज़र से। सो दिस इज़ अगेन अ प्रॉब्लम इन कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। आई होप यू विल हैव अंडरस्टैंड।